Well, there is a paragraph for you, and it is taken from passage one and reading for ideas. In this passage, we'll try to understand the opinion given in this paragraph. So let me read it. When chess spread to Europe, it was seen. When chess spread to Europe, it was seen as a prestigious pastime associated with the nobility. The social values attached to it can be seen in the exquisitely beautiful chessboard of medieval Europe. It also became a subject for art, and a necklace and other jewelry were often decorated with chess pieces. High ranking soldiers or knights were required to have other non military skills in order to be worthy of their title, and one of these skills was the ability to play chess. Chess became more popular with the invention of the checkered board made of alternate black and white squares, which made it easier to distinguish between the squares than it had been when the board was all one color. Such was the popularity of this wonderful game that writings about theories and tactics for winning began to appear in the 15th century. So here is the paragraph, and you find out a specific opinion given in this passage. So when chess spread, it was seen as a prestigious pastime. Prestigious का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसमें मतलब यूं कह सकते हैं कि बाबरकत कह लें या प्रेस्टिजियस, बड़ी इज्जत वाले को कह लें, मुअज्जज को जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, हाई वैल्यू को हम कहते हैं, तो प्रेस्टिजियस पास टाइम था, एसोसिएटेड विद व्हाट, एसोसिएटेड विद द नोबिलिटी, मतलब ये नोबिलिटी के साथ, मतलब नोबिलिटी का मतलब होता है इशराफिया, elite class, हम कहते हैं elite class खेलती थी. The social value attached to it can be seen in the exquisitely beautiful chessboard, exquisitely beautiful chessboard of medieval. Here it is the opinion. Exquisitely beautiful chessboard. ये chessboard था, ये बहुत beautiful नहीं, exquisitely था, यानी इंतहाई शानदार खूबसूरत chessboard था. Of medieval Europe. It also became a subject of art, and necklace and other jewelry more were often decorated with chess pieces. अब ये ना, ये एक फैक्ट है, क्योंकि ये ऐसा किया जाता था, इसको प्रूव किया जाए, उसने अपनी बात नहीं की उसने. तो हाई रैंकिंग सोल्जर्स नाइट्स वर रिक्वायर्ड टू हैव other non-military skills in order to be worthy of their title. And one of these skills, ये देखें ग्रामर का पॉइंट भी देखिएगा, one of these skills, और उसने वर्ब क्या लगाया हुआ है, was, वर्ब नहीं लगाया हुआ. One of these skills, इन skills में से एक skill was the ability to play chess. ये भी था, ये भी fact है. Chess became more popular with the invention of the checkered board, और ये उससे ज्यादा पॉपुलर हो गया. ये ओपिनियन नहीं, ये भी उसने फैक्ट बता रहा है, ऐसा हुआ. Made of alternate black and white squares, which made it easier to distinguish between the square than it had been with the board was all one color. Such was the popularity of this wonderful game. This wonderful game. ये जो गेम है, ये वंडरफुल गेम है भाई. हो सकता है कि कोई आदमी इसको वंडरफुल मानता ही ना हो इसको, ठीक है. दिस वंडरफुल गेम that writing about theories and texts for winning began to appear in the 15th century. Here is the answer for you. Chess boards of medieval Europe are were exquisitely beautiful. और नंबर टू, चेस इट इज अ वंडरफुल गेम. ठीक है, ये दोनों आपके ओपिनियन होंगे. आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट. ठीक है जी, अब चलते हैं हम, हमारे पास रीडिंग फॉर मीनिंग है, और रीडिंग फॉर मीनिंग के लिए हमारे पास सेंटेंस है. वन ऑफ द रिचुअल्स ऑफ एलिस लाइफ वाज गोइंग शॉपिंग विद हर ग्रैंडमदर. Else what she was allowed to hold the shopping bag, which, despite its short handles, knocked Alice on the leg when she carried it. Only certain things went in it. Her grandmother explained that vegetables and soap should not be in the same bag, but tins and soap together were allowed. Peaches shouldn't go in the string bag as they got bruised. Once, when Alice was carrying a box of eggs, she opened the lid to inspect them. Alice was carrying a box of eggs. She opened the lid to inspect them, and they slid from her hands, breaking on the pavement in a shock of shattered shell and a viscous watery blood. Don't worry, said her grandmother over and over again. On this particular day, Alice was holding the string bag, which she put over her head and pulled down over her body with the plated handles folding
folding her arms under the webbing. When she wore it like that, did it not make her a perfect net man? ठीक है जी, ये पैराग्राफ है। अगर आप उसको समझ लग गया तो उसके में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको समझ लग जाएगा। रिचुअल्स एक ऐसी हैबिट्स को कहते हैं, ऐसे रस्म रिवाज काम को हैबिट्स को कहते हैं जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट डेली की जाती हैं या वॉट एवर द रीजन है। खास तौर पर रिचुअल्स होती हैं जो रस्म रिवाज को भी कहते हैं। तो एलिस की लाइफ की तो वो शॉपिंग करने जाती थी एल्स के साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो शी वॉज अलाउड टू होल्ड द शॉपिंग बैग विच डिस्पाइट इन शॉर्ट हैंडल्स knocked Alice the leg when she carried it। अब देखिए ना, knocked Alice on the leg when she carried it, कि वो जो बैग है वो उसकी टांगों से टकराता था। इसका मतलब है कि वो बहुत छोटी होगी तो टांगों से टकरा रहा है ना उसको। तो ओनली सर्टन थिंग्स वेंट इन, हर ग्रैंडमदर एक्सप्लेन दैट, हर ग्रैंडमदर उसको एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, दैट वेजिटेबल्स एंड सोप शुडंट बी इन द सेम बैग, बट टिन्स एंड सोप टुगेदर वर अलाउड। अब जिस बच्चे को ये भी नहीं पता हो कि बैग के अंदर कौन सी चीजें कैसे रखनी है, तो इसका मतलब कि वो इतना बड़ा तो नहीं होगा। तो पीचेस शुडंट गो इन द स्ट्रिंग बैग। अब पीचेस जो है ना वो शुडंट गो, वो पीच बैग में नहीं रखनी चाहिए। एज दे गॉट ब्रूज्ड, और वंस when Alice was carrying a box of egg, she opened to the lid to inspect them, and they slid from her hands, breaking on the pavement in a shock of shattered shell। ये जो shock है यहाँ सदमा नहीं है। In a shock of shattered shell and vicious watery blur। आप देखें ये कितनी अच्छी एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है कि अंडे नीचे गिरे हैं और अंडों की जर्दी और उसका जो विस्कस गाढ़ा मवाद है वो हर तरफ पानी की तरफ फैल गया। अब तो शॉक ऑफ शैटर्ड शेल, शैटर्ड का मतलब होता है वो टूटे हुए जो अंडों के खोल होते हैं वो शॉक। इसका मतलब पाइल का मीनिंग है, शॉक का मतलब यहाँ पाइल है। तो पाइल ऑफ शैटर्ड शेल और विस्कस वाटरी ब्लड फैल गया। जो उसने क्या कहा, डोंट वरी सेड हर ग्रैंडमदर ओवर एंड ओवर अगेन। अब ये बता रहा है कि वो बजाय इसके कि वो डांटे, ये क्या किया तुमने, क्यों, तो वो कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये लगता है कि जो ग्रैंड फादर मदर है वो बहुत काइंड है उसके साथ, ठीक है ना। तो ये देखिए हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं मीनिंग को किस अंदाज। ऑन दिस पर्टिकुलर डे एलिस वाज होल्डिंग द स्ट्रिंग बैग, उसने उस स्ट्रिंग बैग को पकड़ा हुआ था, और which she put over and over again and pulled down her। इस तरह से हम ये कहते हैं कि एलिस वाज होल्डिंग द स्ट्रिंग बैग व्हिच शी पुट ओवर एंड पुल डाउन ओवर द बॉडी विद द प्लेटेड हैंडल्स। अब उसने वो स्ट्रिंग का जो बैग है वो आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में, वो कैसा बैग था, उसने सर के ऊपर पहना हुआ था। और वो कहती कि मैं क्या नेट मैन नहीं लग रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ हमारी अब पैराग्राफ को हमने अंडरस्टैंड कर ली। ठीक हो गई। अब आप देखते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये आपको नेट बैग नजर आ रहा हो। अब ये नेट बैग है और ये देखें इसके दो सिरे अगर निकालेंगे और इसको सर पे लेके आप कंधों तक ले आएंगे तो आपको लगेगा जैसे नेट मैन बना हुआ है, ठीक है ना। और ये नेट का बैग है, इसमें रिचुअल्स का मीनिंग हमने पढ़ लिया। ये राइट्स होता है, सेरेमनीज और फॉर्मेलिटीज को कहते हैं। विस्कस का मतलब होता है ये स्टिकी, ग्लूई, थिक या ट्रिकली के मानों में भी आता है। और ये जो प्लेटेड होता है ये वूवन होता है। जैसे ये जो आप इसके अगर हैंडल देख रहे हो तो ये वूवन हैंडल है। ये देखें जैसे वूव किया जाता है इनको ऐसे कर, तो इनको हम प्लेटेड बोलते हैं। और ये ब्रेडेड होता है, इंटरवूवन, वीव्ड या इंटरवाइन और नेट के मानों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। फ्रॉम पैराग्राफ 1 से क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर एलिस एंड हर ग्रैंडमदर डूइंग ऑन द पर्टिकुलर डे। तो इसका आंसर क्या होगा, शॉपिंग कर रहे थे। और गिव टू ऑफ द वेज इन विच द राइटर इंडिकेट दैट एलिस वाज ओनली अ लिटिल गर्ल। ये है, आपने कहना है एलिस वाज ओनली अ लिटिल गर्ल। तो देखें इसके पास तीन ऑप्शन है। एक तो ये है कि उसका जो नेट बैग था उसकी लेग से टच कर रहा था, इट शोज इट्स लेंथ, ठीक है ना, साइज। और दूसरी बात यह है कि उसको ये भी नहीं पता था कि बास्केट में क्या चीजें कैसे रखनी है। तीसरा ये था कि उसने वो शरारत करते हुए बच्चा नेट जो है ना वो, हालांकि ये चीजें लेने के लिए होता, वो सर पे रखा हुआ था उसने और बता रही थी कि जैसे मतलब ये कोई नेट मैन होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें आप इसको आप लिख सकते हैं। अच्छा लिखने के लिए, अच्छा आपको आंसर पता चल गया, लेकिन लिखना भी कैसे है ये भी आपको आना चाहिए। और हाउ कैन वी टेल दैट एलिस्बेथ इज अ केयरिंग ग्रैंडमदर। अब ये इसका आंसर, ये आपने नहीं कहना कि जी उसने शी डिडंट से एनीथिंग टू हर, नहीं। आपने उसकी कोट कर सकते हैं कि while eggs broke she said don't worry repeatedly over and over again, ठीक है ना। ये आप इसको मेंशन करेंगे तो मैं आपको ये लिख के भी दे देता हूँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गोइंग शॉपिंग या टू द शॉप्स, ये भी हो सकता है आंसर। और इसका जो है द शॉपिंग बैग नॉक्ड हर ऑन द लेग, she did not know that vegetables and soap shouldn't be in the same bag, or she didn't know which things went together, she pretend to be a net man। तो ये देखिए तीन पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक द शॉपिंग बैग नॉक्ड ऑन हर लेग एक है, और ये वाले मुख्तलिफ, ये तीन पॉइंट। तो इन दोनों में, इनमें से आपने ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। तो आप कोई से भी 2 पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं।
ठीक होगी बाजी? हाँ जी बिल्कुल, आप इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे इनडायरेक्टली आ सकता है। द शॉप, जैसे शी डिडंट नो दैट वेजिटेबल, सॉरी यहाँ पे हम कर देखते हैं आंसर आ जाता है उसका। तीसरे का जो आंसर होगा हमारा, शी टोल्ड एलिस नॉट टू वरी ओवर एंड ओवर, ये आपका इंडायरेक्ट सेंटेंस है। और रिपीटेडली व्हेन द बैग ब्रोक, शी अश्योर्ड और comforted Alice over and over again when the eggs broke। ये देखें सारा ये indirect में लिखा हुआ है, you can write it, not a big deal। और आप इसको as it is left लिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन करना है कि उसने उसको ये डांटा नहीं और उसको बल्कि उसको प्यार से समझाया उसको, या उसने इसको कंफर्ट करने की कोशिश की। ये सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है, एलिस्बेथ met a friend and they talked for ages outside the antique shop. Alice started to jiggle about as she held Elspeth's hands. Alice did not like this friend much. Without stopping her conversation or even looking down, Elspeth twisted Alice's arm, which Alice knew meant she was expected to behave. Alice went back the sole of her sandal under her foot. She tried not to look bored. Eventually, she extricated her fingers from Alice, walked over to the windows of the antique shop, and pressed her face to it. At first, she was looking only at how tiny beads of moisture left a ghostly imprint of her nose and lips on the glass. Then she peered into the shop. It was very dark and strange. Things hung from the ceiling. But then she saw a glass cabinet heaped with beads, earrings, and rings, and Alice's apprehension gave way to exhilaration. अच्छा जी, एलिस्बेथ मेट अ फ्रेंड। अब देखें एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट हुआ, तो उसने नए में एलिस्बेथ ने बताया कि वो अपनी फ्रेंड से मिल रही थी, एंड दे टॉक्ड फॉर एजेस आउटसाइड द एंटीक शॉप। ये प्लेस बताया। देखें आपने जब अपने नैरेटिव ऐसे लिखने हैं तो उसके अंदर आपकी शिफ्ट आपको पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया। फिर वो जो मुलाकात हो रही है वो कैसे हो रही है। एलिस स्टार्टेड टू जिगल अबाउट एज ही हेल्ड एलिस्बेथ हैंड। अब एलिस्बेथ ने उसका हैंड पकड़ा हुआ था और एलिस जो है ना वो जिगल करना शुरू कर दिया उसने। और क्या किया उसने, एलिस को ये बात उसकी अच्छी नहीं लगी, और उसने मतलब एलिस उसकी अपनी दादी अम्मा के फ्रेंड को पसंद नहीं करती थी। और विदाउट स्टॉपिंग हर कन्वर्सेशन और इवन लुकिंग डाउन, एलिस्बेथ ट्विच्ड एलिस आर्म। और आप अच्छी तरह जानते हैं, कभी आप बजारी बात बच्चे होंगे, अम्मा ने आपका हाथ पकड़ा होगा, अगर वो किसी जरूरी काम कर रहे हैं और आप हिलजुल कर रहे होते हैं, तो वो आपकी चुटकी काटते हैं और आपको खींचते हैं, अपने झटका देते हैं। तो देखें एग्जैक्टली उसने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एंड यू नीड टू फॉलो इट। तो विच एलिस न्यू मेंट शी वाज एक्सपेक्टेड टू बिहेव। तो एलिस वेंट बैक टू सोल ऑफ हर सैंडल अंडर द फुट, और वो अपने पाँव के पीछे एड़ी के ऊपर जोर देके घूमने की कोशिश कर रही थी। तो शी ट्राइड नॉट टू लुक बोर्ड, वो मतलब कर रही थी कि वो बोर ना हो, मतलब वो तो बच्चे तो बोर होते ही हैं। इवेंचुअली, आखिरकार, ये देखें वर्ड देखें, इवेंचुअली उसने एक्सट्रिकेट किया अपने आप को, आजाद किया, रिलीज किया अब दादी अम्मा के फिंगर से, हाथों से। और कहाँ चली गई, वॉक टू विंडो टू द एंटीक शॉप एंड प्रेस्ड हर फेस टू इट। और वहां जाके अपना विंडो से अपना मुंह लगा दिया उसने। तो एट फर्स्ट शी वाज लुकिंग ओनली एट हाउ टाइनी बीड्स ऑफ मॉइस्चर लेफ्ट अ घोस्टली इम्प्रिंट ऑफ हर नोज एंड लिप्स ऑन द ग्लास। फिर उसने देखा कि वो जो, क्योंकि शीशे का विंडो थी, उसके ऊपर जब उसने अपना मुंह रखा होगा, नाक रखा होगा, उसके जो वेपर्स बने होंगे, तो एक पिक्चर सी बनी होती है। फिर बाद में क्या हुआ, देन शी पीयर्ड, पीयर्ड का मतलब झांकना होता है। शॉप में जब देखा तो इट वाज वेरी डार्क एंड स्ट्रेंज थिंग्स हंग फ्रॉम द सीलिंग। तो बड़ी अजीबोगरीब चीजें छत से लटक रही थी। बट देन शी सॉ अ ग्लास कैबिनेट, फिर उसको ग्लास कैबिनेट नजर आई। उसमें ढेर लगा हुआ था बीड्स का, इयररिंग्स का, रिंग्स का। तो उसका जो खौफ था वो खुशी में तब्दील हो गया। अब देखें ये कितनी क्या बातें हैं इसमें, इस पैराग्राफ के अंदर। यार आपको ये लिखनी है, ऐसी कैसे लिखनी है कि ना भी दादी अम्मा की दोस्त उससे बातें कर रही है, एलिस शरारतें कर रही है, दादी अम्मा ने कैसे रिएक्ट किया, फिर कैसे वो अपने हाथ छुड़वाकर एंटीक शॉप के पास चलेगी, वहां पे जो ग्लास विंडो था उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। यार दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर यू टू राइट योरसेल्फ। I think that it is not for reading actually, it is for writing. It's a writing guide for you people, you can follow it। ठीक है जी। अब हम इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में से पहले मीनिंग में जिगल का मतलब देखें क्या होता है। शेक होता है, वुबल होता है, विगल है, शेक है, ट्रेमर है। और एक्सट्रिकेट का मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट कर लेना, रिमूव, फ्री, रेस्क्यूड, आजाद कर लेना, अपने आप को छुड़वा लेना। एप्रीहेंशन का मतलब एंजाइटी, वरी, वेयरनेस, फियर, ड्रेड, कैप्चर। अब ये देखिए इतनी दफा एप्रीहेंशन का मतलब आ चुका है। और एक्सीडेंट का मतलब जो है ना वो एक्साइटमेंट, इलेशन, जॉय, डिलाइट के मानों में आता है। और फ्रॉम पैराग्राफ 2, बिफोर शी एक्सट्रिकेटेड हर फिंगर्स फ्रॉम एलिस, इन व्हाट टू वेज एलिस वाज मिसबिहेविंग। ये देखें टू वेज, आपने बताना है दो तरीकों से एलिस जो मिसबिहेव करी थी। एक तो वो जिगल जिगल कर रही थी, और दूसरा ना अपनी अपनी एड़ी के ऊपर पाँव रख के वो घूमने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, ये उसको तंग कर रही थी, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि वो उसको इरिटेट कर रही थी, नहीं। वो जो मेन चीजें वहां लिखी है उसको अपने मेंशन करना।
और टाइनी बीड्स ऑफ मॉइस्चर, ये जो टाइनी बीड्स ऑफ मॉइस्चर है मतलब जो एवेपोरेशन है, लेफ्ट अ घोस्टली इम्प्रिंट ऑफ हर नोज एंड लिप्स ऑन द ग्लास विदाउट यूजिंग द वर्ड्स ऑफ द पैसेज एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो वो क्या हो रही थी कि यहाँ पे वो जनाब क्या नाम है आपका, ये एलिस है यहाँ पे और ये ग्लास विंडो है, इसके ऊपर उसने नाक रखा हुआ था, इसमें एक पिक्चर बन रही थी, वो उसको और ये उसको देख रही थी बस। ये दैट्स द थिंग यू हैव टू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा जी, explain in your own words how Alice feeling changed as looked to the glass। जब वो ग्लास कैबिनेट को देख रही थी तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हुई, एज चेंज हुई, एलिस फीलिंग्स चेंज हुई। तो एक्सप्लेन इन योर ओन हाउ, कैसे चेंज हो गई। तो कैसे चेंज हो गई, अब यहाँ पर ना उसने वो दो वर्ड्स को मेंशन करना है कि वो कौन से दो वर्ड हैं जो एंजाइटी से हैप्पी की तरफ चेंज हो गई हैं। तो ऑब्वियसली वो कैसे चेंज होगी, इसमें देखिए हाउ का उसने फोकस किया हुआ है, हाउ। और हाउ के लिए हम उसने यही बताया कि उसने पहले तो वो जो चीजें लटकी हुई थी उसको डर डर आ रही था, डर आ रहा था, और फिर जब उसने इयर देखी तो उसकी जो है खुशी में तब्दील हो गई। तो ये आपने इस अंदाज से मेंशन करना, ठीक है जी। ये देखें जी, अब इसमें बिफोर शी एक्सट्रिकेटेड के लिए क्या होगा, शी जिगल्ड, फिजिटेड, होप्ड as she held Elizabeth's hand, पहला। दूसरा, she bent back the sole of her sandal या shoe under her foot, या she was playing with her sandals or shoe। ये आपका आंसर हो गया। अब ये वाला टाइनी बीट्स वाला क्या आंसर है इसका, आप लिखेंगे कि मॉइस्चर, मॉइस्चर, ये जो ब्रेथ है, ब्रीदिंग है, और जो कंडेंसेशन है, स्टीम है, वेपर है, मिस्ट है, और इसका जो इम्प्रिंट है, शेप, आउटलाइन, इमेजरी, कॉपी, मार्क। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखना पेपर के अंदर प्लीज ये याद रखिएगा कि आप एक मॉइस्चर लेके आ जाए, इम्प्रिंट लेके आ जाए। ठीक है, आप ये लिखेंगे कि हिज ब्रीदिंग was making a shape on the pan of window या ग्लास पैन, ये आप लगाएंगे इसका आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स हाउ एलिस फीलिंग। अब इसमें ये लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, फियर और एक्सलरेशन। अब ये लिखेंगे कि इन द बिगिनिंग हिज फियर या हिज एंजाइटी या हर नर्वसनेस या हर वरी, हर डाउट, हर इजीनेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हैप्पीनेस बिकॉज फर्स्ट ही सॉ थिंग्स हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग एंड आफ्टर दैट ही वॉच्ड व्हाट, ही वॉच्ड ईयर रिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। ये आप बेटा यहाँ से देखेंगे, ये आपके 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात जी। चलेंगे नेक्स्ट, आपको मैं ये दिखवा दूं, ये आप वो कह रहे थे ना कि वो हॉर्स वाला, ये आपको, और ये वो क्लोथ वाला है। ये हॉर्स वाला है, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता था, जरा रिकॉल करें, अभी आपको आ जाएगा। शेल वी गो इन एंड लुक आस्क्ड एलिजाबेथ। सून एलिस वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ टेबल विद अ सरफेस सो polished that she thought that if she touched it, ripples would circle out from under the fingers to lap at its edge. She looked around the dark red walls of this temple of wonders, feathered fans, gold-edged painting, lampshades, dangling strings of purple beads. Alice walked over to a carousel of clothes, dived down underneath it, and then surfaced, surrounded by antique dresses and scarves. She ran her hand reverently down the clothes and turned round and round until dizziness started to smudge her vision। ठीक है, अब देखें, शिल वी गो। अच्छा, अब वो बच्ची जो है वो हाथ छुड़वाकर वहां दुकान पे जा चुकी है। अब वो फिर शिफ्ट हुई है, ये पैराग्राफ में शिफ्ट हुआ है कि वो दोनों दोस्त चले गए, उसने बताया तो नहीं अभी दोनों तो चले गए, लेकिन हमें पता चल गया कि यार बस जारी बात है, जब उसने एलिसबेथ ने उसको कहा होगा एलिस को कि चलें शॉप के अंदर, तो वो दोस्त चली गई होगी या दोस्त के साथ होगी, वट जो है। तो एलिस ने देखा ना, सून एलिस वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द टेबल विद अ सर्फर। अब उसने शेल वी गो इन एंड लुक का आंसर नहीं दिया, और उसने सन्नस बताया कि भाई वो एक स्टैंड टेबल के सामने शॉप के अंदर चले गए थे। ये होता है शिफ्ट इन द स्टोरी, और ये आपको सीखना चाहिए कि कैसे जो है ना स्टोरी के अंदर शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट टेबल विद द सरफेस। अच्छा, अब वो कुछ सरफेस है वो जो है ना, आ टेबल विद अ सरफेस सो पॉलिश दैट शी थॉट दैट इफ शी टच्ड इट। अब देखेंगे स्ट्रक्चर को देखें, आ टेबल ये एक नाउन है, आ टेबल, और विद अ सरफेस सो पॉलिश, ये क्या चीज है, विद, ये आपका प्रेपोजिशन फ्रेज है, और प्रेजेंट फ्रेज किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है आपको। एक टेबल है, वो उसकी सरफेस इतनी चमक रही है दैट के शी थॉट, सोचा इफ ये टच करेगी तो क्या होगा, रिपल्स वुड सर्कल आउट फ्रॉम अंडर द फिंगर्स टू लैप एट एजेस। तो वो जो उंगली जब उसके ऊपर रखेगी तो उसकी सरफेस चूंकि इतनी चमक रही है, पानी की रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगी, यू कैन इमेजिन। ठीक है ना, तो ये देखेंगे किस अंदाज से बात करें। शी लुक्ड अराउंड द डार्क रेड वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल। ये देखें, दिस टेम्पल, टेम्पल ऑफ वंडर्स। अब टेम्पल किसे कहते हैं,
टेम्पल जो है ना वो आपको पता है कि ये माबद खाने होते हैं या इस तरह की चीजें जिसमें एंटीक चीजें होती हैं, उनको टेम्पल कहते हैं, इबादत गाहें होती हैं। तो वो टेम्पल ऑफ वंडर है, ये हैरत वाली चीज है जिसके अंदर चीजें मौजूद होती हैं। तो टेम्पल ऑफ वंडर्स है, फेदर्ड फैंस हैं, गोल्ड एजेड पेंटिंग्स हैं, लैंप शेड्स हैं, डैंगलिंग स्ट्रिंग्स ऑफ पर्पल बीड्स हैं। अब डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, तो एलिस वॉकड ओवर टू अ कैरोसल ऑफ क्लोथ। अब ये कैरोसल क्लोथ आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखेंगे, ये आपका ये घूमता है। और अगर आप यहाँ पे इसको पकड़ के करेंगे क्लोज को, तो ये चक्कर लगा रहा होता है। तो वो यहाँ पर एंटर होती है और कपड़ों के अंदर घुस जाती है, ठीक है ना, इधर से निकलती है उधर निकलती है और उसके चक्कर लगाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। कैरोसल क्लोथ्स डाइव डाउन अंडरनीथ इट एंड देन रीसर्फेस, और फिर बाहर निकल आती है, सराउंडेड सराउंडेड बाय एंटीक ड्रेसेस एंड स्कार्व्स। ये एंटीक ड्रेसेस एंड स्कार्व्स हैं। शी रैन हर एंड रेवरेंटली डाउन। अब शी रैन हर शी रैन हर शी रैन हर हैंड, अपने हाथ को रेवरेंटली, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तकद्दुस के साथ, डाउन द क्लोथ एंड टर्न्ड राउंड एंड राउंड अंटिल डिजीनेस स्टार्टेड टू स्मजेस हर विजन, कि उसको चक्कर आना शुरू करते हैं और उसका विजन जो है ना समझिस ब्लर हो जाता है। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। अब देखें, अगर आपको ये पढ़ना आ गया, समझ में आ गया, तो यार इस तरह की खुद लिखिए प्लीज। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपकी अंग्रेजी कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाली। तो इसके जो रिपल्स का मतलब क्या होता है, ये वेव्स कहते हैं, स्वेल्स हैं, अंडुलेट्स है, फ्लोज और हीव्स को कहते हैं। यानी वो पानी के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको रिपल बोलते हैं। और कैरोसल हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। ये राइट को राउंड अबाउट कहते हैं, कंटेनर भी होता है, होल्डर और ड्रम के मानों में भी आ रहा होता है। और ये जो रेवरेंटली का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुली, हम्बली, डेफरेंस के मानों में भी आता है। और जो स्मजेस है, इसका मतलब ये ब्लॉट, स्मीयर, ब्लेमिश, ब्लर, ब्लॉट, स्मर्च, दाग धब्बों को स्मजेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दाग धब्बे नहीं है, यहाँ पे ब्लर के मानों में इस्तेमाल होता है। ये है रेफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग। और डिजीनेस चेक कराने में। Shall we go in and look? Asked Elspeth. Soon Alice was, चलिए हमारा ये हो गया था। From paragraph 3 में क्वेश्चन है, inside the antique shop Alice saw a table with a polished surface। अब ये polished surface जो है, what did the surface of the table remind her of? इस polished surface ने उसको क्या याद करवाया है? क्या चीज याद करवाई है? तो जारी बात, उसको पानी याद करवाया है। ये पानी होगा जिसके ऊपर से वो वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। और एलिस थॉट ऑफ द एंटीक शॉप एज अ टेम्पल ऑफ वंडर। ये टेम्पल ऑफ वंडर्स है। इसमें देखें, वर्ड टेम्पल और वंडर को आपने याद रखना है। पिक आउट, राइट डाउन द सिंगल वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो आपको टेम्पल ऑफ वंडर्स के को रिप्लेस कर सके, उसको आपने लिखना है यहाँ पे। ठीक है जी, चलें जी। इसका आंसर हो गया वाटर लेक या पाउंड और पूल, ये इसका आंसर हुआ। और इसका जो आंसर है वो क्या है, रेवरेंटली। क्योंकि टेम्पल एक मस्जिद, इबादत गाहें होती हैं, उस इबादत गाहों के अंदर हम जो है ना वो इज्जत और तकद्दुस से जाते हैं। तो रेवरेंटली इसका आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं जी। यू मस्ट बी एलिस, इट वॉज द शॉप ओनर लूमिंग ओवर द टॉप ऑफ द carousel. He reached in and Alice felt him grip her underneath her arms before the floor fell away and she was rising towards a low red lantern covered with the writhing green bodies of dragons which was hanging from the ceiling. Then the floor was coming up to meet her again and she was set down in front of the man. Tell me, he said, what do you want? And she was set down in front of the man. Tell me, he said, what do you like about best in here? Alice did not hesitate, but pointed solemnly to the red dragon, a lantern. अब देखिए, यू मस्ट बी एलिस, कहता है आप एलिस हैं, आप एलिस होंगी। ये कौन है? शॉपकीपर ने एंटी डाली। इट वॉज द शॉप ओनर, ये एक शॉप ओनर था। लूमिंग ओवर द टॉप, और लूमिंग का मतलब होता है झुकते हुए। लेकिन लूमिंग का वर्ड क्यों यूज किया, ओवर द टॉप ऑफ द कैरोसल? अब कैरोसल क्या था, मैंने आपको पहले दिखाया, वो जो घूमने वाला था, कपड़े वाला जिस पे रखे थे, उसके ऊपर वो आया और उसके बाद झुक गया। और उस कपड़ों के अंदर कौन छुपी हुई थी? एलिस खेल रही थी। तो ही रीच्ड इन एंड एलिस फेल्ट हिम ग्रिप हर अंडरनीथ हर आर्म्स बिफोर द फ्लोर फेल अवे एंड शी वाज राइजिंग टुवर्ड्स अ लो रेड लैंटर्न कवर्ड विद द writhing writhing green bodies of dragons which was hanging from the ceiling. Then the floor was coming up to meet her again. यार आप देखें, मतलब क्या जबरदस्त उसने एक्सप्लेन किया। उसने कहा, देखें कि शॉपकीपर ने एलिस को उठाया, और जब उठाया तो छत की तरफ ले गया, तो छत की चीजें नजदीक हो गई, और वो जो नीचे कारपेट है जो दुकान का था वो दूर हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, देन द फ्लोर वाज कमिंग अप टू मीट हर अगेन, और फिर दोबारा वो जो ना कारपेट है वो उसको मिलने के लिए दोबारा नीचे आ गया। इसका मतलब ये कि उसने एलिस को उठाया, छत की तरफ ले गया, और फिर उसको वापस ले आया। छत की तरफ लेके नहीं गया होगा, इसका मतलब ये कि उसका शॉप ओनर का कद बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो विच वॉज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, देन द फ्लोर वॉज कमिंग अप टू मीट हर अगेन।
एंड शी वाज सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मैन, और फिर उसको एक आदमी ने अपने सामने उसको बिठा दिया। टेल मी, मुझे बताओ, ही से वो कहने लगा, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन देयर, सबसे अच्छी चीज तुम्हें क्या लगती है? एलिस डिड नॉट हैव, उसने बगैर किसी चीज के कहा, बट पॉइंटेड सोलमनली टू द रेड ड्रैगन लैंटर्न, तो वो रेड ड्रैगन लैंटर्न थी उसकी तरफ का, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है। ठीक है जी, आप समझ लगी आपको ये क्या किस अंदाज से ये पैराग्राफ लिखा हुआ है? तो इसमें लूमिंग का मतलब होता है इम्पेंडिंग, खतरे को कहते हैं, पेंडिंग, थ्रेटनिंग, हुवरिंग, मंडलाता हुआ खतरा। और जो राइडिंग होता है इसका मतलब रिगलिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है, कम होता हुआ। From paragraph 4, my question है, what effect is created with the word looming that would not be created by, for example, the word appearing? कौन सा है जो उसने effect जो है वो appearing क्यों नहीं कहता? Then the shop owner appeared. Appearing over the top के लिए looming क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि वो जरी बात है, एलिस डर गई होगी, लेकिन अब नहीं कहना एलिस was frightened. मे बी इसका आंसर करेक्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको किसी और तरीके से लिख, मैं बताता हूँ आपको मैं। द फ्लोर फेल अवे एंड शी वाज राइजिंग टुवर्ड्स, ये देखो कितना मजेदार लिखा हुआ है, द फ्लोर फेल अवे, fell away, fell away, floor fell away, and she was rising towards a low red lantern covered with the right writhing pen bodies of the dragon, which was hanging from the ceiling, जो सीलिंग से नीचे लटक रहा था वो नजदीक हो गया। Then the floor was coming up to meet her again, और फिर फ्लोर दोबारा उसको लिए आया मिलने के लिए, मतलब ये कि वो नीचे आ गई। एक्सप्लेन फुली व्हाट वाज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रही है भाई, क्या क्या हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है भाई, क्या हो रही है? ठीक है, बताते हैं क्या हो रही है। तो इफेक्ट क्या क्रिएट किया उसने? द मैन शॉप ओनर वाज सीम टू बी टॉल बिग, एक द मैन शॉप ओनर फ्राइटेंड एलिस, और एलिस फेल्ट थ्रेटेंड, ये इसका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था, द मैन शॉप ओनर वाज लिफ्टिंग एलिस हर अप फ्रॉम द कैरोसल क्लोथ्स अप या टुवर्ड द सीलिंग, और एलिस शी वाज बीइंग लिफ्टेड up from the carousel clothes towards the ceiling and put back down again। तो इसमें जो मैंने ये होता है ना, ये वाली जिस कहते हैं स्लैश वाला, ये ऑप्शन होती हैं, अब इसको कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। He smiled and holding up a pearl necklace said, when you came in, I was testing these to see if they are real or fake. He put the pearls into Alice's palm. The best way to do this is to put them into contact with human skin. He explained if they are real, they start to glow. Enchanted, Alice watched the pearls for any signs of opalescent glowing. Suddenly, the man whipped them out of her hand. Maybe that method is too time consuming. He said the other way is to rub them against your teeth. Real, uh, real pearls feel like sand. Open your mouth. The shop owners rubbed the largest pearl against her two front teeth. Alice waited spellbound. There was a grainy feelings, a kind of friction. They are real. There, she exclaimed. अब क्या हुआ? ही स्माइल्ड एंड होल्डिंग अप अ पर्ल नेकलेस, उसने मुस्कुराया और एक पर्ल नेकलेस जो है ना वो होल्डिंग पकड़ते हुए नेक पर्ल नेकलेस था। व्हेन यू केम इन, जब तुम आई तो आई वाज टेस्टिंग दीज टू सी इफ दे आर रियल और फेक। अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि वो जो मांगा है वो ड्रैगन वाला वो उसको दिया नहीं दिया, वो बीच में ही रह गई बात है, नई चीज उसने उसको पकड़ा दी है, शिफ्ट किया उसने। तो उसने कहा दे रियल, और उसने कहा कि जो मैं है ना क्या कर रहा था व्हेन यू केम इन दीज टू सी, क्या पर्ल नेकलेस देख रहा था मैं, पर्ल नेकलेस। कहता है ये रियल है या फेक है ये देख रहा था। He put the pearls into Alice palm, उसने एलिस के हाथों में रख दिया। The best way to do is to put them into contact with human skin, कहता है इसका बेस्ट तरीका होता है ह्यूमन स्किन पे रखें। If they are real, अगर ये रियल होंगे तो they start to glow। बट एक कंडीशनल सेंटेंस चेक कर लें यहाँ पे, if they are real they start to glow। Can you see the conditional sentence? Enchanted, क्या मतलब enchanted का? सरप्राइज, शॉक्ड, मतलब सरप्राइज, हैरत से दम बखुद होते हुए। एलिस वॉच द पर्ल्स फॉर एनी साइन ऑफ ऑपलेसेंट ग्लोइंग, तो उसने देखा कि ओपल होता है ना, ओपल मोती कहते हैं, ओपलेसेंट ग्लोइंग, ग्लोइंग का मतलब चमकना होता है। तो वो देखा उसने, वॉच द पर्ल्स, मोती को देखते रही, फॉर कोई ऐसी साइन उसको नजर आए कि ये ओपल की तरह से ग्लो करना स्टोर है। सडनली द मैन वेप्ट, अचानक आदमी ने क्या? विप किया देम आउट ऑफ हर हैंड, तेज उसके हाथों से पकड़ लिया, छीन लिया। यहाँ पे विप का मतलब तो कोड़े मारना होता है, लेकिन यहाँ कोड़े मारता है, तेज उसके हाथ से छीन लिया। मे बी दैट मेथड इज टू, कहता है ये बहुत टाइम लगेगा। द अदर वे इज टू रब देम अगेंस्ट योर टीथ, दूसरा अपने दांतों से रगड़े आप। रियल पर्ल्स फील लाइक हैंड, जो रियल पर्ल्स होते हैं ना वो क्या लगते हैं? ये रेत की तरह लगते हैं। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। द शॉप ओनर रब द लार्जेस्ट पर्ल अगेंस्ट हर टू फ्रंट टीथ। एलिस वेटेड स्पेल बाउंड, हैरान परेशान हो गए। देयर वाज अ ग्रेनी फीलिंग, रेत वाली फीलिंग आ रही थी। अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, को रगड़ महसूस हुई। देयर रियल, वो कहती है हाँ ये तो सही है, बिल्कुल ये सच्चे हैं, ये नाबी ट्रू है, मतलब ये दे आर रियल। समझ रहे बात को?
देखिए अगर आपको बेटा ये इंग्लिश में लिखा हुआ समझ आ रहा है, पढ़ा जा रहा है, आपको मजा आएगा पढ़ के प्लीज। और इसके लिए देखें, जब भी आप चैलेंज करें अपने, ऐसे पैसेज पकड़ें उसको देखें, आपको अगर मजा आना शुरू हो गया, आपको समझ में आ रही है, तो भाई क्वेश्चन कुछ भी होगा आप उसका आंसर देंगे। ये बड़ा इंजॉयबल काम है। मड फ्लैट्स ये भी किधर से आ गया, ये स्प्रिंटेड ये भी गलत आ गया। अच्छा इसमें जो मीनिंग आपको लिखने थे वो, यहाँ पे हमने इंचांटेड और ये जो ऑप्लेसेंट और ये स्पेल बाउंड के मीनिंग लिखने थे। इसका मतलब सरप्राइज होता है, इसका मतलब वेब का मतलब कोड़े लैश के माने होता है, लेकिन यहाँ पे टेकन बाय सडनली के मीनिंग में। ओपल एज अ काइंड ऑफ ए जेम को कहते हैं, या मोती को कहते हैं, या पर्ल को कहते हैं, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन आंसर की तो देखते हैं। फ्रॉम पैराग्राफ 5 में एक्सप्लेन प्रिसाइजली द टू मेथड्स। कौन से अकॉर्डिंग टू द शॉप ओनर फॉर डिसाइडिंग वेदर पर्ल्स आर रियल और पर्ल्स आर फेक। तो जल्दी से बताएं कौन से थे। एक तो अपनी हथेली के ऊपर रखना था, और दूसरा दांतों से रब करना था, ठीक है। और एलिस वॉज इनचांटेड, वो बड़ा इनचांटेड थी। पिक आउट एंड राइट डाउन द सिंगल वर्ड यूज्ड लेटर द पैराग्राफ व्हिच कंटिन्यूज द आइडिया ऑफ इनचांटेड। यार ये तो बहुत आसान है, फौरी बता देंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है, एक्सप्लेन प्रिसाइजली द टू मेथड्स। पहला है कि पुट देम इन कांटेक्ट विद योर ह्यूमन स्किन टू सी इफ दे ग्लो शाइन। और दूसरा कौन सा है कि रब देम अगेंस्ट योर टीथ टू सी इफ दे फील लाइक सैंडी, फील ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब भी सैंड लाइक ही होता है, ठीक है। और फील ग्रिटी और ग्रिटी होता है। और ये बताइए कौन सा आंसर है, जल्दी से फटाफट करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। सोचें इसको। यहाँ पे ये लफ्ज लिखा हुआ है इनचांटेड, ठीक है, ये एन्चांटेड लिखा हुआ है। अब उस तरह से और कौन सा वर्ड है जिसके सेम मीनिंग आ रहे हैं। एन्चांटेड मतलब हैरान परेशान हो जाना, सरप्राइज होना, शॉक्ड हो जाना। हाँ हाँ नहीं यार, ग्लोइंग कहाँ पे होगा। एन्चांटेड का मतलब सरप्राइज, हैरान कौन हो जाना, हैरत से बुत बन जाना। एन्चांटेड ही वाज। जल्दी जल्दी एक और चांस दे रहा हूं मैं आपको। स्पेल बाउंड इसका आंसर बन रहा है जी, स्पेल बाउंड इज द आंसर, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है द शॉप ओनर प्लेस एलिस ऑन dilapidated chair in front of her mirror fastening the pearls around her neck. Elizabeth appeared behind them in the mirror. Alice, she said, we must go. Give the man back his necklace. She turned Alice around her, began fastening the clasp. तो उसने उसके मन ने कहा भाई चलो हमने निकलना है, भैया इसको दे दो वापस करो। तो डिलेट का मतलब नहीं, डिलेपिडेट का मतलब प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिलेट का मतलब होता है ब्रोकन। और ये जो क्लैस्प का मीनिंग यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ये जो फैशन को क्लैस्प कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नो, सेट द ओनर शॉप आई वुड लाइक हर टू हैव देम। कहती नहीं मैं चाहती हूँ कि इसको ले ले। रिडिकुलस का मतलब लुडिक्रस, प्रीपोस्टरस, एब्सर्ड, आउटलैंडिश और बिजार के मीनिंग में आता है। और प्रोपेलिंग का मतलब आपको पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रोपेलिंग का मतलब यानी ये पुशिंग ड्राइविंग फोर्स को कहते हैं। और इसका फ्रॉम पैराग्राफ 8 का क्वेश्चन ये है कि डोंट बी रिडिकुलस, आर यू रनिंग अ बिजनेस और व्हाट, एक्सप्लेन फुली व्हाट एलिजाबेथ मींस बाय दिस। तो इसका मतलब था कि तुम उसको फ्री दे रही हो, तो तू बिजनेस कर रहा क्या कर रहा है, तो तुम चलो बड़ा बहुत टाइम हो गया ये मरा ना, वियर्ड हरकतें कर रहा है शॉपकीपर। तो इसका आंसर क्या होगा कि यू कांट डू इट, इट इज सिली, ही वाज सिली, या इट्स इम्पॉसिबल टू गिव एक्सपेंसिव आइटम्स अवे। तो यानी ऐसे तकसीम का इफ यू वांट टू मेक मनी, तो ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है जी। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब ये हमारा क्वेश्चन आंसर तक हो गया। और लास्ट मिनट के अंदर हम इसके आप क्वेश्चन आंसर चेक कर लें।